Hey learners, hope you all are doing well. Welcome back to our programming and problem solving sessions. Guys, today we are going to start with laboratory work assignments. Okay, so the university has prescribed some list of assignments. So we will solve those assignments in today's session. Okay, so I hope you will enjoy this programming session also. Okay, so in the past, in all 6 units, we have covered lot of concepts of Python, right? Like we started with basic first Python program, variables, data types, list, tuple, dictionary, isn't it? Functions, classes, objects, file handling, all these concepts now we have to apply in solving this laboratory assignments. Okay guys, so let's, without wasting time, let's start with solving this assignment. So we'll start with the first assignment, experiment number 1. I hope you are able to read it. Okay, see, in this first assignment, what we have to do is, it's a very basic assignment. Okay, as it is the first experiment, so it is based only on the input output statement, print, input, variables, operators, basic arithmetic operators and all. So using that we have to solve this assignment. Okay, so the question is to calculate the salary of an employee. Okay, and what will be given? His basic salary. Okay, every company decides some basic salary. That is the minimum salary which every employee has to get. Okay, and after that, in that basic salary, some earnings will be added and some deductions. Getting some earnings like his house rent allowance, then travel allowance. Getting now big corporates give many more allowances also. So all that allowances will also get added along with your basic salary. And there are some deductions also, right? Deductions like some professional taxes there, income taxes there, and then if you have taken some loan and your medical and all, so that deductions are also there. So your basic salary plus earning minus deduction is the net salary or take home salary. Getting? So the salary which you are going to get. So see here, we have to calculate the salary of an employee. His basic salary is given. This basic salary we have to take it as an input from the user. We have to calculate the gross salary of the employee. Okay, now only basic salary is not there. Clear? Only basic salary we are not supposed to calculate. That is the value which we take from the user. We have to calculate the gross salary. Now in that some earnings are there, like HRA, that is house rent allowance, is 10% of the basic salary. So whatever is the basic salary, its 10% will be added as house rent allowance. Okay, then of the basic salary, TA, that is the travel allowance, is 5% of the basic salary. That is TA. That will be also added in the basic salary. So this much is the earning like. Okay, let the employee pay professional tax. Tax to be given again back to the government. Income tax is there, then your professional tax and many. Nowadays CST and GST is deducted. So let the employee pay professional tax, getting, as 2% of total salary. Total salary. Now whatever is this total salary, its 2% will be the professional tax. That professional tax is to be subtracted. Remember, because it is not the earning, it is the deduction. You have to give it to the government. So 2% of the total salary. Calculate the net salary payable after deduction. Getting? So now what is the net salary? Calculate the net salary payable after deduction. So it is basic plus HRA plus TA minus professional tax is your net salary.
ठीक है, and that we have to display, right guys? So that's simple the question is. This question is a very elementary question based on the initial concepts of your Python, that is input output statements, operators, variables. Using that we have to solve it. Gradually in the next experiments we will be going with more and more detailed concepts. गेटिंग? तो जैसे जैसे हम लोग अगले असाइनमेंट में जाएंगे तो और पाइथन के कंसेप्ट्स हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सॉल्व दिस असाइनमेंट एंड मेनी मोर असाइनमेंट्स वी हैव टू सॉल्व. आई एम श्योर यू आर सुपर एक्साइटेड टू लर्न ऑल दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, isn't it? Okay. I'll move to PyCharm. It is up to you whether you want to solve it in PyCharm or you want to solve it in some other editor, like you can solve it in your idle editor also, or you're preferring some other editors. It's up to you. But when you write lengthy scripts, it is preferred to do using PyCharm. Getting? If you are doing some analytics script and all, then you can go for Anaconda also. Clear? Jupyter Notebook. Okay. I'll come to PyCharm. We will create one new file. New Python file. I'll give name to it as lab1, laboratory assignment 1. Okay, now first what we have to accept from the user is basic salary, isn't it guys? Input, and the value is going to be float. Okay, so input, enter basic salary. ठीक है? That simple the question is. तो input statement will just give that prompt, enter basic salary. That prompt will be displayed and then input function will wait for you to enter something. ठीक है? कर्सर ब्लिंक होते रहेगा और वो वेट करेगा कुछ एंटर करने के लिए. जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे वो इनपुट एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. लाइक अगर आपने एंटर किया है 7500, तो दैट विल कम एज अ स्ट्रिंग and that string you are converting it to float. पहले यूनिट में हमने कास्टिंग, टाइप कास्टिंग एंड ऑल ये सब कंसेप्ट्स पढ़े हैं. तो ये स्ट्रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोट में, एंड फिर किस में आ जाएगा? ये BS नाम के वेरिएबल में, दैट इज बेसिक सैलरी. फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज HRA. एंड HRA क्या बताया गया है? दैट इज बेसिक सैलरी जितनी भी है उसका 10%. ठीक है? तो इनटू 0.01, 10% मीन्स 10 upon 100. Is it right? तो it is going to be how many? 10 upon 100. तो it is 0.1, not 0.01. It is 0.1. So it's up to you. You want to do the calculation, or you can write 10 divided by 100. You know that single slash is a float division only anyway in Python. Okay, so I'm writing 0.1. Now this is HRA. Now TA we have to calculate. TA is basics 5%, that is 0.05. That is 5 upon 100. Okay guys, now we have calculated HRA, TA. Then they are saying also the deduction is to be done, that is the professional tax, which is 2% of total salary. Now total salary you can say is basic salary plus HRA plus TA. Okay, so professional tax will be totals how much percent? 2%. ठीक है? तो it is 0.02. Right guys?
that becomes the professional tax. Now the net salary or take home salary, we have to calculate that only. Calculate net salary payable after deduction. So that is earnings minus deduction. So what is the net salary? So net salary is basic salary plus HRA plus TA, getting, minus, or you can say total minus professional tax. And these things you can display it. Clear? आप ये डिस्प्ले कर सकते हैं. आपको हर एक चीज़ डिस्प्ले करनी है या सिर्फ नेट सैलरी डिस्प्ले करनी है, ये आपके ऊपर है. अर्निंग्स देना है, डिडक्शन देना है, फिर नेट सैलरी डिस्प्ले करनी है. इट इज़ अप टू यू. ओके, तो प्रिंट स्टेटमेंट में आप ये सब वैल्यूज डिस्प्ले कर सकते हैं. आपको चाहिए तो ईच एंड एवरी वैल्यू डिस्प्ले करना है, लाइक बेसिक सैलरी कॉमा बेसिक सैलरी. ठीक है, फिर HRA, ओके, प्रिंट TA, दैट इज ट्रैवलिंग अलाउंस. फिर आपको अर्निंग्स दिखाना है, तो अर्निंग्स इज टोटल. ओके, फिर आपको डिस्प्ले करना है प्रोफेशनल टैक्स, दैट इज डिडक्शन. एंड लास्ट में आपको नेट सैलरी डिस्प्ले करनी है. ठीक है, दैट इज NS. That's all. ठीक है, I hope it is clear to you guys. Isn't it? Okay, very simple question it was. Now let's execute it. Okay. See, it is asking for the basic salary. Suppose I am entering basic salary as 45,000 according to Indian currency. So you can see your total you are getting like this. So 45,000 is the basic salary, 4,500 is house rent, 2,250, that is 2,250 is traveling allowance. This all total basic plus HRA plus TA is your earnings, and professional tax is 1,035. So earnings minus professional tax is the net salary or take home salary. Getting guys? Okay, so I hope it is clear with this. ठीक है, तो आपको ये असाइनमेंट क्लियर है. काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि पहला ही असाइनमेंट है, राइट, पहला ही लेबोरेटरी वर्क है, तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं दिया है. इसमें हमें सिर्फ वेरिएबल्स का यूज़ करना था, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, डेटा टाइप्स के बारे में कंसेप्ट पता होना चाहिए था, एंड ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करना है वो देखना था. ओके, वेलकम बैक गाइज. कंटिन्यूइंग विथ आवर laboratory work assignments. Now continuing with that, we will take today the next experiment number 2. Okay guys, ठीक है. ये असाइनमेंट भी काफ़ी ईजी है. इसमें भी सब एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ही यूज़ करने हैं कि फॉर्मूलीज कैसे, कोई भी अरिथमेटिक फॉर्मूला है तो उसको कैसे आप लोग प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करोगे, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, डेटा टाइप्स, इसके बारे में ही इधर यूज़ करना है. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो पहले. टू एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट मास इन किलोग्राम्स, ओके, एंड वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड. ओके, किस स्पीड से वो मास जाने वाला है. ठीक है, एंड डिस्प्ले इट्स मोमेंटम. मोमेंटम इज कैलकुलेटेड एज E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ठीक है, जनरली ये टाइप के क्वेश्चन इन ये फॉर्मूलीज, वाई, बिकॉज फर्स्ट ईयर में हमें मैकेनिक्स एंड ऑल होता है, राइट और नो, तो उसमें हमने ये सब कंसेप्ट्स पढ़े रहते हैं.
तो even in 11th 12th in physics and all you might have studied, तो momentum is calculated as E equal to mc square, that is mass, clear, velocity square, where m is the mass of the object and c is its velocity. ओके, तो आई होप ये फॉर्मूला हमें अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है. ठीक है, तो इनपुट क्या लेना है यूजर से? मास लेना है ऑब्जेक्ट का, वेलोसिटी लेनी है ऑब्जेक्ट की, ये कैलकुलेशन करना है एंड कैलकुलेशन करके जो मोमेंटम आया है वो हमें डिस्प्ले करना है. ओके, तो वो मोमेंटम क्या रहेगा? किलोग्राम, ओके, पर सेकेंड. ओके, वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड, तो ये रहेगा सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो वो यूनिट एंड ऑल इज ओके, वी जस्ट हैव टू डू द कैलकुलेशन एंड डिस्प्ले इट लाइक. ठीक है, तो लेट्स क्विकली सॉल्व दिस विदाउट वेस्टिंग टाइम. अभी मैं यहां एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं. ठीक है, ये फाइल को मैं नाम दे देता हूं lab2 पाइथन फाइल. अभी हमें इनपुट क्या लेना है? तो दो इनपुट्स है हमारे, एक है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक है वेलोसिटी. इजंट इट गाइस? देखो, टू एक्सेप्ट एन ऑब्जेक्ट मास इन किलोग्राम, तो m इक्वल टू, मैं यहां भी फ्लोट ही ले लेता हूं, इनपुट एंटर कर देते हैं वैल्यू, एंटर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम्स. ठीक है, फिर वेलोसिटी भी एक्सेप्ट करनी है, उसको भी मैं इनपुट से ही ले लेता हूं, एंटर वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, ओके. अभी ये दोनों इनपुट्स क्लियर है. पहला इनपुट क्या है? एंटर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम. ये एक प्रॉम्प्ट मैसेज आएगा, ये इनपुट स्टेटमेंट ये प्रॉम्प्ट देगा, कर्सर ब्लिंक होगा, आप जो भी वैल्यू एंटर करोगे, वॉट एवर वैल्यू, ठीक है, 2 kgs 3 kgs, दैट विल कम एज अ स्ट्रिंग. फ्लोट उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, वो m में आ गया. फिर ये इनपुट स्टेटमेंट अगेन ये एक प्रॉम्प्ट देगा, एंटर वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड. ठीक है, आपने वेलोसिटी दे दिया, लाइक 12 है, 7 है, 8 है, वॉट एवर, वो वैल्यू स्ट्रिंग में आने वाला है, वो फ्लोट, उसको फ्लोट में कन्वर्ट, वो सी में आ गया. अभी हम लोग कैलकुलेशन करता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर. अभी स्क्वायर निकालना है तो C इंटू सी भी लिख सकते हो, या C*2 भी लिख सकते हो. क्लियर? दैट इज फॉर्मूला प्रोवाइड किया है ना पाइथन ने, फॉर्मूला नहीं, ऑपरेटर. तो पाइथन ने एक रेस टू ऑपरेटर दिया है, $, x*y इज सेम एज x⁻²y. वो यूज करो, या फिर C इंटू सी भी लिखे रहते थे तो भी वो C² ही बनने वाला था. ओके, अभी ये जो भी E आया है मोमेंटम, वो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे. एकदम सिंपल क्वेश्चन था. मोमेंटम इज कैलकुलेटेड एज EmC², वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड c इज इट्स वेलोसिटी. क्लियर? तो हमें मोमेंटम डिस्प्ले करना है, तो इधर प्रिंट स्टेटमेंट में मैं लिख देता हूं, मोमेंटम इज कॉमा E. राइट गाइस? ठीक है, ओके, दैट्स ऑल. इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं. सपोज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मैं दे देता हूं 10 kg एंड स्पीड दे देता हूं एज
7, ठीक है। तो मोमेंटम इज 490, ओके, 490 किलोग्राम्स पर सेकेंड, वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड। तो जो भी यूनिट बनता है मीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। व्हाटएवर, इधर तक क्लियर है? ओके, वेलकम बैक गाइज इन आवर लेबोरेटरी असाइनमेंट सीक्वेंस. Now, in the past 2 laboratory assignments we have solved. Now we will go to experiment number 3. ठीक है? I'm sure you all are enjoying it, right? तो प्रोग्रामिंग तो एंजॉय करना ही चाहिए. आपका पूरा आगे का फ्यूचर करियर प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो द फ्यूचर इज प्रोग्रामिंग, राइट? तो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 पे जाते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. यहां देखो, अभी ये प्रोग्राम में क्या करना है वो पहले पढ़ लेते हैं एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. टू एक्सेप्ट n नंबर्स फ्रॉम यूजर, तो n इंटीजर्स बोलो, ओके. तो वो n इंटीजर्स हमें यूजर से लेने हैं और कहीं तो स्टोर करने. तो अभी स्टोर किस में करोगे? ऑब्वियसली लिस्ट. हमने लिस्ट, डिक्शनरी, टपल ये पढ़ा है. तो n नंबर्स फ्रॉम द यूजर, compute and display maximum in list. एक्चुअली पाइथन ने रेडीमेड फंक्शंस दिए हैं जो मैक्स लाके देता है, मिन लाके देता है. क्लियर? मीन्स आप मैक्स ऑफ इटरेबल, मीन्स अगर आपने एक इटरेबल बनाया है l इक्वल टू और उसमें कुछ वैल्यूज रहेंगे, ठीक है. एंड अभी इधर मैंने लिखा मैक्स ऑफ l. तो वो एक्चुअली इसमें जो भी मैक्सिमम है वो लाके दे देता है. तो रेडीमेड और बिल्ट इन फंक्शन है ऑलरेडी पाइथन ने दिया हुआ, गेटिंग? बट वी आर नॉट सपोज टू यूज दिस वन, ठीक है. एज तुम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट सीख रहे हो, लॉजिक बिल्डिंग, तो इनका एक्सपेक्टेशन है कि ये मैक्सिमम निकालने के लिए, मिनिमम निकालने के लिए अपने लॉजिक्स लिखो. यू राइट योर लॉजिक्स, ओके. तो हाउ टू राइट दैट लॉजिक वी विल स्टडी इट यूजिंग लूप्स एंड ऑल, ओके. तो हमें मैक्सिमम निकालना है ये लिस्ट में से, मिनिमम निकालना है, सम निकालना है एंड एवरेज. इन सबका सम और इन सबका एवरेज. एक्चुअली सम के लिए भी एक रेडीमेड क्या अवेलेबल है? फंक्शन सम ऑफ इटरेबल. हमने ये पढ़ा हुआ है. ये जब हम लोगों ने लिस्ट एंड टपल्स देखे थे तो उस समय हमने ये पढ़ा हुआ है, गेटिंग? सम एंड उसको अगर हमने पास किया एक लिस्ट, कोई भी इटरेबल, अभी वो इटरेबल टपल भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है. तो वो क्या करेगा, ये लिस्ट में जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है उनका टोटल निकाल के लाके देता है. बट हमें अभी यहां सम खुद निकालना है. वी हैव टू कैलकुलेट, ओके गाइज. एंड फिर ये सम, मैक्स, जो सम आएगा उसको इसमें कितने एलिमेंट्स है उससे डिवाइड कर दिया तो एवरेज मिल जाएगा, राइट अनु? ठीक है. तो ये सब चीजें एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं. यू कैन डू इट एवरीथिंग यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस. जो पाइथन ने बिल्ट इन फंक्शंस दिए हैं उसका यूज करके भी ये सब चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. पहले हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं एक्सेप्टिंग, ठीक है. एक्सेप्ट कैसे करना है? एलिमेंट्स यूजर से लेते जाना है एंड वो किसमें स्टोर करना है? इन दैट लिस्ट. तो एक्सेप्ट n नंबर्स फ्रॉम यूजर. तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. क्विकली हम लोग मूव करते हैं टू आवर पाइचाम एडिटर. मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं, ओके. मैं इसको नाम दे देता हूं lab3, ठीक है गाइस. यहां पहले हम लोग n एक्सेप्ट कर लेते हैं. इंटीजर होना चाहिए. इनपुट एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है.
ये एक प्रॉम्प्ट मैसेज दे दिया, इनपुट ने ये मैसेज दे दिया एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आ जाएगा यूजर को, फिर कर्सर ब्लिंक होगा, आप जो भी एंटर करोगे वो स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। अगर आपने दिया है 10 तो वो डबल कोट 10 आएगा, वो डबल कोटेड 10 दैट इज स्ट्रिंग, ये इनपुट वो स्ट्रिंग को इनपुट नहीं इंट कन्वर्ट कर देगा इनटू इंटीजर एंड वो n में आ गया। अभी हम लोग n एलिमेंट्स यूजर से लेते जाएंगे और एक लिस्ट में डालेंगे, ठीक है। अभी लिस्ट में कैसे ऐड करोगे, तो पहले आपको एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ेगा, दिस इज योर एम्प्टी लिस्ट। हम लोगों ने ये सब कंसेप्ट लिस्ट टपल डिक्शनरी ये जब मैंने लिया था एक यूनिट में तब हमने ये सब कंसेप्ट्स पढ़े हैं, राइट गाइस। तो अभी मैंने फिलहाल एक एम्प्टी लिस्ट बनाया। पाइथन का एक खासियत है कि एम्प्टी है तो भी वो बाद में ग्रो हो सकता है, वो डायनामिक है, गेटिंग। अभी फॉर लूप लेता हूं मैं, फॉर आई इन रेंज n, ठीक है। ये लूप कितनी बार चलेगा, n टाइम। याद रखना रेंज भी एक इटरेबल रिटर्न करता है, ठीक है। n अगर आपने 5 दिया होगा, राइट, इफ यू हैव गिवन n एज 5 तो ये रेंज फंक्शन एक इटरेबल रिटर्न करेगा जिसमें वैल्यूज रहेंगे 0 1 2 3 4, ऐसे 5 वैल्यूज। एक इटरेबल मीन समझ रहा है, गेटिंग, एक ग्रुप ऑब्जेक्ट, ऐसा ग्रुप ऑब्जेक्ट जिसमें सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज है फ्रॉम 0 टिल 4। और ये इटरेबल ऑब्जेक्ट किसने रिटर्न किया, रेंज ने। अभी फॉर लूप क्या करेगा, ये इटरेबल में से एक एक वैल्यू निकालते रहेगा, 0 निकालेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और वो किस में आते रहेगा, आई में, गेटिंग। तो जितने वैल्यूज है इसमें उतनी बार आपका फॉर लूप चलने वाला है, गेटिंग, दैट इज द बेसिक्स। आई होप ये मैंने लूप्स जब सिखाए थे तब ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हुए हैं, राइट गाइस, ठीक है। अभी हम लोग एलिमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड उस एलिमेंट को ये लिस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अभी कैसे ऐड करना है वो बताता हूं। देखो, पहले एलिमेंट ले लेते हैं एक टेम्पररी वेरिएबल ई में, इनपुट यहां दे देता हूं एंटर एलिमेंट। हाँ, आपको एलिमेंट का नंबर भी प्रिंट करना रहेगा, कर सकते हो, ठीक है। एंटर एलिमेंट 1, एंटर एलिमेंट 2, ओके। तो यहां ऐसे लिख सकते हो %d और यहां %, और यहां i+1 लिख दो, ठीक है। यू नो इट, व्हेन यू राइट i+1 तो अगर 0 है तो ये 1 बनेगा और वो इस %d के जगह पे सब्स्टिट्यूट होने वाला है, गेटिंग, दैट इज क्लियर टू यू। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए, दैट इज ये ई जो लिया है हमने यूजर से, ये इस लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो l.append e, फॉर लूप खत्म। तो ये फॉर लूप में हो रहा है क्या, n टाइम्स वो एलिमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, एंटर एलिमेंट 1, एंटर एलिमेंट 2, एंटर एलिमेंट 3, और जो एलिमेंट आप एक्सेप्ट कर रहे हो वो ये लिस्ट के अंदर जाके अपेंड कर रहे हो, ठीक है गाइस, समझ में आया। अभी चाहिए तो आप लोग ये लिस्ट डिस्प्ले कर दो, ठीक है, यहां दिखा सकते हैं, दैट इज गिवन लिस्ट और गिवन एलिमेंट्स, ओके, कॉमा l, राइट। इतना तो काम हो गया। अगर आपने इतना रन भी किया और देखा तो आपको उतना आउटपुट तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। लैब 3, सपोज यहां देखो मैं एलिमेंट दे रहा हूं 5, तो आ रहा है मैसेज एंटर एलिमेंट 1, 78 दे रहा हूं, 15 दे रहा हूं, 79, 100, एंड फिर दिख रहा है आपको कि ये सारे एलिमेंट्स ये एम्प्टी लिस्ट में जाके ऐड हो रहे थे। अपेंड मेथड वही करता है ना, अपेंड मेथड एलिमेंट लेता है और वो लिस्ट के एंड में जाके ऐड करता है, एलिमेंट ले रहा है लिस्ट के एंड में ऐड कर रहा है। तो जब ये लूप खत्म हो जाता है तो आपके लिस्ट में n एलिमेंट्स है और ये सारे n एलिमेंट्स यहां दिख रहे हैं। अभी आपका नेक्स्ट टास्क क्या है कि ये लिस्ट में से
मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, राइट? फिर ये लिस्ट में से मिनिमम एलिमेंट निकालना है। इसके लिए वैसे मैंने कहा कि आप लोग डायरेक्टली यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस कर सकते हो। देखो आप लिख सकते हैं मैक्स वैल्यू और मैक्स एलिमेंट एंड मैक्स, एंड उसको आप ये इटरेबल भेज सकते हो, ठीक है? मिन वैल्यू, मिन, और उसको ये इटरेबल भेज दो, सम वैल्यू, सम, उसको ये इटरेबल भेज दिया, ओके? एंड एवरेज इज सम डिवाइडेड बाय n, ठीक है? और ये सब चीजें हम प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर? प्रिंट मैक्स एलिमेंट कॉमा मैक्स, राइट गाइज? वैसे ही मिन वैल्यू, सम, देन एवरेज, तो मिन एलिमेंट, सम, एवरेज, ये डिस्प्ले कर सकते हैं। बट इसमें क्या हुआ कि आपने ये सब कैलकुलेशंस के लिए, मैक्स के लिए, मीन के लिए, सम के लिए क्या किया है? रेडीमेड बिल्ट इन फंक्शंस यूज किए जो पाइथन ने प्रोवाइड किए। तो कोई गलत नहीं है जब आप लोग प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं। तो अभी आप लर्नर स्टेज में, जहां आपको सिर्फ लॉजिक्स बिल्ड करने, अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक्स लिखना है। इसमें कैसे हुआ है? प्रॉब्लम था मैक्स निकालने का, बट वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ लॉजिक नहीं लिखा, ऑलरेडी पाइथन ने वो प्रॉब्लम सॉल्व करके रखा है, आपने वो सिर्फ रेडीमेड सोल्यूशन यूज कर लिया। गेटिंग? बट काफ़ी एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि जब आप लर्निंग स्टेज में रहते हैं तो लर्निंग स्टेज में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी खुद ढूंढना आदत रखो। यू ट्राई टू राइट द सॉल्यूशंस फॉर इट। हाँ, बट व्हेन यू गो टू एट अ एक्सपर्ट लेवल, जहां आपको प्रोडक्ट्स डेवलप करना है, वहां आप लर्निंग स्टेज में नहीं है, तब फिर आप ये ऐसे बने बनाए कोड्स जो होते हैं, किसी और ने जो बनाया, वो पिक करके यूज करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि वहां आपका कंसेप्ट लॉजिक बिल्डिंग नहीं है, वहां प्रोडक्ट्स जल्द से जल्द बना के हमें बाहर निकालना है। तब फिर हम लोग ये सब चीजें बनाने के लिए अपना टाइम नहीं घलाएंगे टू डू द मैक्स वर्क एंड मिन वर्क एंड सम। इसके लिए लॉजिक्स हम लोग नहीं बिल्ड करेंगे, वी विल रेडी यूज दैट लॉजिक। गेटिंग? बट जैसे मैंने कहा कि आप जब लर्निंग स्टेज में हो तो ये सब चीजें खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? तो वी विल डू इट, बट उसके पहले इसको सिर्फ रन करके देखते हैं। देखो यहां मैं 5 एलिमेंट्स दे देता हूं एंड कुछ वैल्यूज दे देता हूं, लाइक 5 दिया, 7 दिया, 2 है, 9 है, 6 है, ठीक है? कैन यू सी मैक्स, मिन? ओ, मैंने इधर डिस्प्ले करते समय दोनों जगह पे मैक्स ही लिखा, ठीक है? एक जगह पे मिन लिखना था, कोई इशू नहीं है। अगेन मैं 5 एलिमेंट्स देता हूं। सपोज आई एम गिविंग 5, 8, 1, 3, 2 दिया। कैन यू सी यहां मैक्स एलिमेंट 8 है, मिन एलिमेंट 1 है, सम इसका 19 आ रहा है, एवरेज इसका 3.8 आ रहा है, ठीक है? तो 19 डिवाइडेड बाय 5, तो 19 बाय 5 इज 3.8, तो वो दिखा दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल हम लोग क्या करेंगे कि ये 3 जो एक्टिविटीज है, मैक्स, मिन एंड सम, ये हम लोग खुद करेंगे, ठीक है? मीन्स इसके लिए हम लोग लॉजिक्स लिखेंगे, वी विल राइट द लॉजिक्स फॉर इट, ठीक है? तो पहले हम लोग मैक्स के लिए लॉजिक लिखते हैं, फिर मिन के लिए निकालते हैं, एंड फिर सम। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट इज क्वाइट इजी, यू कैन डू इट। मैं पहले लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं क्या करना है, ठीक है? मैक्स का समझ में है तो मिन इज सेम। ओके गाइस, सी
आपके पास लिस्ट है ये L इक्वल टू कुछ वैल्यूज रहेंगे इसमें 3 है 5 9 है 2 है 10 है 15 आया 3 है, रिपीट हुआ तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है 7 चल रहा है। पहले क्या करो, एक मैक्स वेरिएबल है अपना मैक्स वैल्यू, इसमें ये 0th एलिमेंट जो है ना, पहला एलिमेंट, उसको मैक्स बना देते हैं। मीन्स पहले फिलहाल तो अनाउंस कर देते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो मैक्स है, फिर आगे के एलिमेंट कंपेयर करते जाता है, एंड फिर आगे के एलिमेंट में कोई एलिमेंट अभी के मैक्स से ज्यादा है तो पोजीशन चेंज, अभी का मैक्स जो है वो निकल जाएगा और न्यू आएगा। ये रियल लाइफ प्रिंसिपल है, रियल लाइफ में भी वैसे ही चलता है। गेटिंग? फिलहाल अभी कोई नहीं है ना तो मैं ही राजा हूं, बट आपसे और पावरफुल कोई आया तो आपकी पोजीशन रिप्लेस हो जाती है वो अगले पावरफुल पर्सन से, राइट और नो? सेम थिंग यू माइट हैव सीन दिस थिंग इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी वैसे ही रहता है, कोई और पावरफुल पर्सन आ गया तो वो प्रीवियस पर्सन की जगह ऑक्युपाई कर लेता है। एवरीवेयर यू कैन सी इट, गेटिंग? इन ऑफिस ऑल्सो, एवरीवेयर द थिंग इज फॉलोड। तो यहां देखो मैक्सिमम वैल्यू पहले हम लोग 3 को ही अनाउंस कर देंगे, जो बचे हुए वैल्यूज है इनको एक एक करके इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, एंड वो वैल्यूज अगर ये वैल्यू से ज्यादा है तो इसको रिप्लेस कर देना है। जैसे अभी देखो 5, इज 5 मोर देन 3? यस, रिप्लेस इट। फिर 9, इज 9 मोर देन 5? यस, रिप्लेस इट। इज 2 मोर देन 9? नो। इज 10 मोर देन 9? यस, रिप्लेस इट। 15 more than 10? Yes, replace it. Is 7 more than 15? No. अभी कंपैरिजन तो खत्म हो गया, क्या बचा है मैक्स वैल्यू में? 15, वो आपका मैक्सिमम है, वो डिस्प्ले कर दो, ठीक है। सेम इज द कंसेप्ट फॉर कैलकुलेटिंग मिन, ठीक है। मिन वैल्यू जब निकालना है सेम प्रोसीजर, ओके गाइज। पहले वैल्यू को ही मिन कंसीडर करो, पहला एलिमेंट जो भी रहेगा वो ही आपका मिनिमम है, ठीक है। फिर बाकियों के साथ कंपेयर करो एंड फिर चेक करते जाओ वो इससे कम है क्या, है तो रिप्लेस। इज 5 लेस देन 3? नो। इज 9 लेस देन 3? नो। इज 2 लेस देन 3? यस, रिप्लेस इट। इज 10 लेस देन 2? इज 15 लेस देन 2? इज 7 लेस देन 2? नो। तो बचा क्या? 2, वो आपका मिन है, राइट। एंड सिमिलरली सम अगर हमें कैलकुलेट करना है, सम, ठीक है, तो सम को इनिशियली 0 रखो एंड फिर एक एक करके एलिमेंट्स लेते जाओ और वो एलिमेंट अभी के सम में ऐड करो और वापस सम में ही रिप्लेस करो। तो देखो अभी का सम कितना है? 0 प्लस 3 3, रिप्लेस किया। फिर 3 प्लस 5 8, रिप्लेस किया। 8 प्लस 9 17, रिप्लेस किया। 17 प्लस 2 19, रिप्लेस। चलते जाओ। तो अभी के सम में नेक्स्ट एलिमेंट ऐड, कीप इट अगेन इन सम, ठीक है। तो लास्ट में जो सम बचा है वो आपका सम है, एंड सम को जब n से डिवाइड करोगे तो वो तो आपका एवरेज दे देगा। गेटिंग गाइज? तो क्वाइट इजी इट इज, यस और नो? आई एम श्योर इट इज इजी एंड यू आर एंजॉइंग ऑल दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। आप पाइथन प्रोग्रामिंग भी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स मूव, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं, न्यू पाइथन फाइल। मैं इसको नहीं, न्यू फाइल बनाने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वेरी सॉरी। तब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था बाय यूजिंग रेडीमेड फंक्शंस, रेडीमेड मैक्स मिन सम, ये यूज करके। बट अभी हम लोग अपना लॉजिक लिखने वाले हैं, तो मैं क्या करूंगा देखो, L ऑफ 0 जो है वो एलिमेंट में बना देता हूं एज मैक्स, ओके गाइस। तो जो 0th एलिमेंट है वो मेरा बन जाएगा मैक्स।
अभी मुझे लगता है आपको लिस्ट, जब हमने टॉपिक पढ़ा था लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, तब ये पढ़ा है कि लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड है एंड वो इंडेक्स्ड है, उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से उसका पोजीशन देकर एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम लोग एक फॉर लूप लिखेंगे, फॉर आई इन रेंज, ओके, 1, n। 1 क्यों? क्योंकि 0th एलिमेंट मैंने ऑलरेडी मैक्स बना दिया था, तो 1th एलिमेंट से मैं शुरुआत करूंगा और जाऊंगा लास्ट एलिमेंट तक। और आपको पता है कि nth एक्सक्लूसिव है, n ये क्या रहेगा? एक्सक्लूसिव। एंड वैसे भी इंडेक्स 0 से शुरू होता है, माने n अगर आपका 5 है तो भी ये जाएगा 1 से 4 तक, तो 1 2 3 4 गेटिंग, एंड 4 तक ही जाना था। अभी क्या करेंगे कि वो जो आयत प्लेस पे एलिमेंट है वो इस मैक्स के साथ कंपेयर करेंगे। इफ L ऑफ I ग्रेटर देन मैक्स वैल्यू, तो इनका कहना है कि अभी जो आयत वैल्यू है वो ये मैक्स से ज्यादा है, तो ये मैक्स को इस वैल्यू से रिप्लेस कर दो, तो ये आपका नया मैक्स बन जाएगा L ऑफ I। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल, इतना सिंपल था। तो ये फॉर लूप कैसे चलेगा? आई होप क्लियर है। पहले एलिमेंट को लिस्ट में से जो पहला एलिमेंट है उसको मैक्स बना दिया, फिर आपके जितने भी बचे हुए एलिमेंट है 1 से लेकर n तक, n एक्सक्लूसिव, वो एक एक एलिमेंट को हम लोग अभी के मैक्स के साथ कंपेयर करते हैं। अगर वो एलिमेंट अभी के मैक्स से ज्यादा है तो अभी के मैक्स को ये करंट एलिमेंट बना दो। ठीक है, सेम इज द लॉजिक फॉर मिन गाइज, ओनली इंस्टेड ऑफ ग्रेटर वी हैव टू मेक यूज ऑफ लेसर। देखो इधर L ऑफ 0 फॉर I इन रेंज 1, n। If L of I लेस देन मिन वैल्यू, मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, अभी की जो एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट वो इस करंट मिन से कम है क्या? तो अगर ये करंट मिन से कम रहेगा तो इसको एज ए न्यू मिन बना दो। तो मैं इधर मिन वैल्यू क्या बना देता हूं? L ऑफ I। दैट्स ऑल। अभी हमें सम कैलकुलेट करना है। सम के लिए देखो, पहले इनिशियल सम कितना रहेगा? 0। फिर ईच एंड एवरी एलिमेंट को मैं ट्रैवर्स करता हूं, फॉर I इन रेंज ठीक है 1, n। आप डायरेक्ट भी फॉर E इन L लिख सकते थे, गेटिंग, यू कुड हैव डन इट। ओके गाइस, यहां भी क्यों? क्योंकि लिस्ट एक इटरेबल है, तो इटरेबल पे डायरेक्ट फॉर लूप चलता है, आपको अगेन रेंज की जरूरत नहीं थी। मैं वो भी दिखा देता हूं, वो लॉजिक भी दिखा देता हूं। अभी देखो, यहां कुछ इफ चेकिंग नहीं है, डायरेक्टली सम वैल्यू में L ऑफ I ऐड कर दो। हां, और यहां 1 से नहीं 0 से ही शुरू करना है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है फॉर I इन रेंज n। ठीक है, अभी ईच एंड एवरी एलिमेंट मैंने किस में ऐड कर दिया? सम वैल्यू में। ईच एंड एवरी एलिमेंट सम वैल्यू। ठीक है, अभी जो भी सम आए उसको n से डिवाइड करोगे तो एवरेज, एंड फिर ये सारे वैल्यूज डिस्प्ले करेंगे जो हमने पहले ही डिस्प्ले किया था। ठीक है, सी हियर आई विल गिव सम वैल्यूज, सपोज 5 देता हूं, इधर 10 लिखा है, 12 है, 7 है, 15 है, 6 है। यू कैन सी इसका मैक्स कितना है? 15, मिन कितना है? 6, समेशन कितना आया है? दैट इज 50, इट इज 50 ओनली। सी ये है 22 और ये 20
51 एंड 7 28, तो 28 एंड 22 50, एंड 50 को 5 से डिवाइड किया तो 10 आ रहा है. राइट गाइज, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज. ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया रहेगा. इन द नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट असाइनमेंट.